are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study life of the early men. Points to study: tools and weapons, making of fire, cave dwellings. Ready, steady, start. You live in your house. Try to know how your house protect you and your family. ये आप खुद से करेंगे. Tools and weapons. The early men were not different from the animals such as apes. They did not have settled life because they had no houses to stay in. They used to roam about in the forest in search of food. They lived near the streams and rivers where there were water. The main food of the early men consisted of fruits and leaves from the trees, grasses, and on the ground, and even roots of plants. They also killed animals for their food, but to get their food, the early men needed tools and weapons. Okay, देखिए, पहले के जो लोग थे एनिमल्स की तरह ही दिखते थे, एप्स की तरह. ठीक है, प्रॉपर ह्यूमन बींग्स जो होते थे वो एप्स की तरह दिखते थे. जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है, इस तरीके के ह्यूमन बींग्स दिखते थे. तो पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे उनके पास घर नहीं होते थे, वो केव्स में रहते थे. और जो टूल्स और वो यूज़ करते थे, पहले जो वो फूड खाते थे वो फ्रूट्स होते थे और रूट्स होते थे, लीव्स होती थी. ओके, पहले के लोग ये सारी चीज़ें खाते थे और कुछ वेपन्स का टूल्स का यूज़ किया करते थे. जैसे कि देयर फर्स्ट वेपन वॉज क्लब्स एंड स्पीयर्स मेड अप ऑफ वुड. लेटर दे बिगिन टू मेक टूल्स एंड वेपन्स ऑफ स्टोन. ओके, उनका जो पहला टूल था वो था क्लब और स्पीयर्स जो कि वुड के बने हुए होते थे. और उसके बाद उन्होंने स्टोन्स का यूज़ करना शुरू किया अपने वेपन्स बनाने के लिए. ओके, व्हेन men begin to shape stones into tools and weapons, it was the beginning of the old stone age. ओके, देखिए, जब men ने अपने टूल्स बनाने के लिए स्टोन का यूज़ करना शुरू किया तो वो बोला गया था, उस एज को बोला गया था ओल्ड स्टोन एज. ओके, देखिए, द डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स एंड वेपन्स वॉज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड. मैन कुड नाउ गैदर देयर फूड मच मोर ईजिली. They could even fight and kill animals larger than men. The life of men became more secure. They needed not fear of wild animals. Instead, they could fight with them and kill them with these stone weapons. देखिए, पहले के लोगों ने जब ये डिस्कवरी की कि वो स्टोन से वेपन्स बना सकते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी ईजी हो गई, क्योंकि वो ईजीली एनिमल्स का शिकार कर लिया करते थे, एनिमल्स को खा लिया करते थे. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था. वाइल्ड एनिमल्स से अब इतना ज़्यादा उन्हें ख़तरा नहीं था जैसे पहले होता था. नाउ the early men did not get their food in one place only. They had to move from one place to in search of food. That was all during the day. But when it became dark, the early men had to fix a place to rest. They used to sleep on tree tops in dark caves. They had to protect themselves from wild animals. Okay, देखिए, पहले के जो लोग थे वो फूड की सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे. एक ही जगह पे उन्हें अपना फूड नहीं मिलता था तो वो मूवमेंट करते थे, लेकिन वो सिर्फ डे टाइम में ही अपने लिए फूड ढूंढते थे. रात में वो या तो ट्री टॉप्स पे रहते थे या फिर केव्स में रहते थे. उन्हें वाइल्ड एनिमल से बचना होता था इसीलिए. ओके, एज time went on, men improved their stone weapons and tools. They sharpened the edges of stones to be able to cut wood and other stones. They made pointed stones to be used as spears. Later, they began to fix handles of wood to their stone tools. In this way, they could use their tools and weapons better. Okay, देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने अपने वेपन्स को थोड़ा सा और अपग्रेड किया. कैसे? उन्होंने स्टोन्स को, वुड को शार्प बनाना शुरू किया, जिससे इजीली वो वुड के जो बड़े बड़े पीसीज होते थे उन्हें कट कर लेते थे और उनका काम जो है वो आसान हो जाता था. ओके, मेकिंग ऑफ फायर. नोबडी नोज हाउ अर्ली मैन बिगिन टू मेक फायर. While wandering through the forest, early men must have seen trees burned by lightning. They must have also seen fires in the woods caused by lightning. At the beginning, they might even have been afraid of the fire. They must have seen that fire destroyed everything. But soon, they must have noticed that fire could be very useful. They could keep the warm in cold days and nights.
It could dry them if they are wet. It could boil water and cook food. ओके देखिए फायर कैसे इन्वेंट हुई, कैसे आई, कुछ इसके बारे में पता नहीं है बेसिकली। ये सिर्फ इमेजिन किया जाता है कि हो सकता है कि पहले के लोगों को फायर का अंदाज़ा ऐसे लगा हो कि लाइटनिंग की वजह से फॉरेस्ट में आग लगी हो और उससे शायद वो डरे भी हों। लेकिन जब उन्होंने उससे चीज़ों को जलते हुए देखा, डिस्ट्रॉय होते हुए देखा, तब उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि फायर जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। ओके नाउ उस लेटर उन्होंने उसको यूज़ किया अपने फूड को कुक करने के लिए। द अर्ली मैन मस्ट हैव नोटिस्ड द स्पार्क्स ऑफ फायर caused by hitting stones together. This must have given them the idea of making fire. They must have seen that they could set dry grass on fire with the sparks. ओके देखिए उसके बाद उन्होंने ये देखा होगा कि 2 स्टोन्स को अगर एक साथ बीट किया जाए प्रॉपर वे में तो वो फायर स्पार्क्स देते हैं और उन फायर स्पार्क्स की हेल्प से ड्राई लीव्स को बर्न किया जा सकता है जिससे फायर लग सकती है। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। When the early men learned to make fire, they began to use it for their advantage. There was plenty of woods and grass in the forest to burn. They must have also noticed that animals were afraid of fire. Thus, they could keep wild animals away at night by keeping the fire burning. They also saw that the fire gave them light at night and inside the dark caves. Okay, देखिए अर्ली मैन ने ये देखा कि फायर जब उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि ये फायर होती है और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस उन्होंने देखे कि रात में जब अंधेरा होता है तो वो फायर का यूज़ कर सकते हैं लाइट दिखाने के लिए, लाइट देखने के लिए। ओके उसके अलावा केव्स में भी वो फायर का यूज़ कर सकते हैं, केव्स के बाहर भी फायर रख सकते हैं जिसकी हेल्प से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो डरते हैं तो वो दूर रहेंगे। ओके नाउ they had already made the life of the early man easier and better, but a greater step forward was taken when men began to use fire to cook their food. We do not know how the early men started to do this. It may have happened by a chance, but men soon found that the flesh of animals was softer and more tasty when roasted in the fire. In this way, they began to make their food soft and nice to eat. They did not have to eat raw food anymore. Okay, देखिए लेटर फायर का यूज़ जो है वो और भी बेटर हो गया जब उन्होंने फूड कुक करना शुरू किया। अब इस चीज़ का तो पता नहीं लगा पाए कि किस तरीके से उन्होंने फूड कुक किया होगा या क्या उन्होंने पहले कुक करके देखा होगा, तो ये अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि मे बी उन्होंने गलती से कोई फूड कुक कर लिया होगा और जब वो सॉफ्ट हो गया होगा तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगा होगा। तो जो फ्लैश होता था एनिमल्स का वो कुक किए बिना बहुत ज़्यादा हार्ड होता था खाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने कुक करके खाया तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया और टेस्टी हो गया। ठीक है, तो केव ड्वेलिंग्स, the life of the early men improved slowly but steadily. They must have left the need to cover their body against the cold. Their earliest clothes must have been made of skins of animals tied together. Big tree leaves must have also been sewn together to make clothes. Okay, देखिए पहले के जो लोग होते थे उन्होंने लाइफ को स्लोली और स्टीडीली समझना शुरू किया। ओके पहले के लोग कपड़े तो होते नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि फैब्रिक्स कैसे बनती हैं या कुछ भी, तो पहले के लोगों ने जो एनिमल स्किन होती थी उसे पहनना शुरू किया होगा, उसके अलावा लीव्स का यूज़ किया होगा, उसे स्यू करके उसे पहना होगा। ओके नाउ when men learned use of fire they began to live in caves. The cave gave them protection from rain and cold wind. The caves where the early men lived have been found in many places. In some of these caves, there are dwellings of figures and animals haunting scenes. The drawings are the cave carved on the walls of the caves. This shows that some of the early men had become artists. Some of these drawings can be seen even today. Okay, देखिए जो caves हैं वहाँ लोगों ने रहना सीखा। ओके लोग केव में रहते थे, लाइट का यूज़ किया केव में रहने के लिए,
केव उनका होम बन गए थे, हाउस बन गए थे। उन्हें हीट से, विंड से, कोल्ड से, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते थे। तो क्योंकि केव्स में बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं, जैसे कि केव्स की जो वॉल हैं उन पर कुछ ड्राइंग्स पाई गई हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले के जो लोग होते थे वो केव्स में ही रहते थे। ओके, और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनमें से कुछ जिन्होंने ड्रॉ किया है वो आर्टिस्ट थे। ओके, नाउ another important thing to learn about the early man is that they must have lived in groups. They needed the help of each other to gather food and to protect themselves. Group of families must have lived in one cave. When the food around the cave became scarce, they must have moved together to another place. After a long time, they learn to grow crops and begin to settle in one place. Okay, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि पहले के जो लोग हैं वो ग्रुप में एक साथ रहते थे और एक केव में स्टे करते थे, जिसकी वजह से उनके लिए फूड इकट्ठा करना, गैदर करना आसान हो गया था और एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन भी बनते थे। ओके, आइए कीवर्ड्स: रोम, मूव, एमलेसली, डिस्कवरी, to find or learn about something, scarce, very less in quantity. Let's recapitulate. The early man lived like animals in the forest. The early man ate raw flesh of animals. The early man lived in caves and on trees. Weapons and tools were made of stones in the early stage. The discovery of fire made the life of the early man easier. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।